Okay, so let us solve more questions on electrostatics. Two small identical spheres having charges plus 10 microcoulomb and minus 90 attract each other with a force of F Newton. If they are kept in contact and then separated by the same distance, the new force will be. तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं. पहला जो चार्ज था वो था आपके पास 10 माइक्रोकूलम. सेकेंड चार्ज जो है आपके पास है वो माइनस 90 माइक्रोकूलम. Okay, and then they have a force F1 equal to F. Then they are brought in contact, they are kept in contact. तो total charge क्या होगा? When in contact, total charge will be Q1 plus Q2, that is 10 minus 90, that is minus 80 microcoulomb. So separate कर दिया at the same distance, तो Q1 dash will be minus 40 and Q2 dash will be also minus 40. कॉन्टैक्ट में लाने के बाद सेपरेट करने के बाद both of them will get half of the total charge, so that is why minus 40 microcoulomb. And the new force F2 is what? So you should know F2 find करना है तो F is proportional to the product of the charges. So F2 by F1 is equal to Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2. This is minus 40 अपॉन Q1. Q1 कितना आपके पास 10 into minus 90, 10 into minus 90. ओके, एक माइनस साइन जाएगा, वैसे डजंट मैटर हियर यू डोंट केयर फॉर द साइन बिकॉज आपको पता है अल्टीमेटली रिपल्सिव फोर्स आने वाला है, क्योंकि नाउ इन द न्यू केस बोथ हैव माइनस एंड माइनस. तो ठीक है. सो अपार्ट फ्रॉम साइन, अगर साइंस को छोड़ देते हैं तो यू विल बी फाइंडिंग दिस एज ये गया 0 गया और 0 गया. दिस इज 16 by 9. तो F2 by F1 is 16 by 9, which means F2 is 16 by 9 times of F1, that is F. Option number C. Next question. Three equal charges, each plus Q, placed at the corners of an equilateral triangle of side A, what will be the force on any charge? Maybe we have done this, but we will do it again. I don't remember if we have done this. हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों साइड्स पे सेम चार्ज प्लस Q रखा हुआ है एंड देयर आस्किंग यू व्हाट इज द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, तीनों से किसी भी एक पे. सो लेट अस टेक दिस टू बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. बाय द वे, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल आपके पास आएगा एंड of course equilateral triangle has all three sides equal, so you will have something like this. अब समझ लेना, नहीं दिखता होगा तो इक्विलैटरल मान लेना. This is equilateral triangle. Imagine this is equilateral triangle. Doesn't look like, but anyways, I will try one time. If I cannot, I will just draw any triangle and call it as equilateral triangle. समझ लो अभी जो भी है. This is equilateral triangle. A, B और C तीनों पे चार्ज है Q Q Q और डिस्टेंस है, साइड है A A एंड A. आपको पूछा है व्हाट इज द टोटल फोर्स ऑन एनी. आई थिंक वी हैव सॉल्व्ड दिस इफ आई रिमेंबर करेक्टली. मैंने ये भी बताया था तीनों इक्वल चार्जेस है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड व्हाट इज टोटल फोर्स ऑन B. तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन B ड्यू टू A इज अवे, राइट. सिमिलरली force on B due to C is something like this, right? So it is something like this, also away. So you will have, this is force on B due to C. और मुझे याद है कि ये 60 था, तो ये आपने 120 बोला था, और हमने ये भी बोला था कि force on B due to C will be equal to force on B due to A will be equal to F will be equal, magnitude wise मतलब 1/4 pi epsilon 0 Q square by A square. मैग्नीट्यूड वाइज सेम क्यों है? क्योंकि फोर्स इज Q1 Q2, सारे चार्जेस सेम, तो Q into Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस. B का डिस्टेंस A से और B का डिस्टेंस C से सेम ही है, तो दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम था. फिर आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स एट B इज अंडर रूट ऑफ
पहला फोर्स का स्क्वायर F1 स्क्वायर दैट इज F स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर दैट इज F स्क्वायर प्लस 2F1 and F2 into cos of angle between the two forces. अगर आपको याद होगा FAB स्क्वायर FBA स्क्वायर प्लस FBC स्क्वायर प्लस 2FBA FBC cos of angle between these two forces which is 120. So this is 2F स्क्वायर, ये cos of 120 आया था हमारा minus half yes minus 1/2. तो now it is confirmed that we have solved this question क्योंकि ये हमको as it is याद है cancel 2F square minus F square is root of F square, correct, and that is nothing but equal to F, right, correct. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. F क्या है 1/4 pi epsilon 0 q square by a square, लेकिन इस 1/4 pi epsilon 0 को बोलते हैं k square k into q square by a square, option number A, right. So since we have already solved this question earlier, you are not getting time to write it again. तो हमने already ये किया है. Okay. अगला question. Now this is for sure a new question. So now what you have is in this question, आपके पास 2 point charges है plus 4q and plus q are placed at a distance L apart. So you have two charges which are placed at a distance L apart. So you have two charges. So charge 1 q1 is 4q and q2 is q. The distance between them is L. तो ये है q1 which is 4q, ये है q2 which is small q. They are placed at a distance L. A third charge capital Q is placed that all three charges are in equilibrium. ऐसा है कि एक तीसरा चार्ज है जो ऐसा रखा है so that all three are in equilibrium, मतलब resultant force is 0. Okay, then the location and magnitude of the third charge will be, first of all तीसरे चार्ज को कहाँ रखेंगे पहले वो डिसाइड करो. If you keep it here, right at the center, look, force is proportional to product of charges and inversely proportional to square of the distance between the charges. अगर मैंने इस पे मान लेते हैं चार्ज है कैपिटल Q, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसा बोला भी है उन्होंने, ये था 4Q और ये है स्मॉल q. अगर मैंने सेंटर पे रखा होता तो दोनों से डिस्टेंस उसका L/2 मतलब डिस्टेंस तो फिलहाल छोड़ दो, प्रोडक्ट 4Q into Q और यहाँ पे Q into Q, कैंसिलेशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो Q1 है जो A पॉइंट पे है वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है, राइट, और जो वहां पे है वो कम लगा रहा है. मतलब इट कैनॉट बी, दिस चार्ज कैनॉट बी in equilibrium, मतलब you cannot keep this right at the center of the line joining the two charges 4Q and small q. तो उसके सेंटर पे तो नहीं रख सकते हो, राइट, तो फिर कहाँ रखेंगे सोचना पड़ेगा. You have to think where to keep this particular charge. Let us say, मान लेते हैं अगर मैंने यहाँ पे x डिस्टेंस पे रखा तो ये L minus x, राइट, जितना डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना फोर्स कम होगा. मतलब बेसिकली इट शुड बी लिटिल अवे फ्रॉम चार्ज ऑफ हायर मैग्नीट्यूड. मतलब बेसिकली दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज राइट, बट ये डिस्टेंस को मैं सिर्फ x बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इस चार्ज को हम टुवर्ड्स b दिखाने वाले हैं. तो ये आ गया आपका L minus x, तो ये आ गया आपका C पॉइंट पे चार्ज Q. ओके, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. तो क्या करोगे अब आपको याद होगा फोर्सेस इक्विलिब्रियम में होना, मतलब चार्जेस forces due to the two charges 0, मतलब total force on C is total force on C due to B plus total force on C due to A. And for equilibrium force on C should be equal to 0.
तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी इज in magnitude equal but in direction opposite, right? Think, because ultimately that is the only thing you can do. अब और लॉजिकल भी है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, क्योंकि तीनों चार्जेस पॉजिटिव, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो सही है, तो दिस इज गुड। देन कैंसिलेशन इज पॉसिबल, मतलब यू कैन हैव कैंसिलेशन, तो ठीक है। अब अगर मैं मॉड वैल्यू देखता हूं तो मैं नेगेटिव नहीं लिखूंगा, सो आई विल पुट अ प्लस। व्हाट इज फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी सम कांस्टेंट 1/4π0, जिसको मैं के बोल रहा हूं, यहाँ पे भी के और यहाँ पे भी के। चार्ज फोर्स में क्या क्या आता है अभी देखा ना आपने, फोर्स में क्या क्या आता है, जस्ट सॉ फोर्स में क्या क्या लिखते हो, Q1 Q2 बाय R² और 1/4π0। इसी 1/4π0 को क्या बोला हमने, के और के, तो दोनों साइड पे आएगा भी और जाएगा भी, कैंसिलेशन। QC QB, QC C पे कितना चार्ज, B पे कितना स्मॉल q, डिस्टेंस कितना L माइनस एक्स का स्क्वायर। QC QA, C पे कितना है, C पे कैपिटल Q और A पे 4Q, बाय डिस्टेंस कितना है x, राइट। तो क्यों जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करो, कैंसिल 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 कैंसिल, यू हैव 1/L माइनस एक्स होल स्क्वायर 4/x², 1/L माइनस एक्स का कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू 4/x का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 2/x, तो x will be equal to 2L minus 2x, बराबर, पक्का, यस। तो सॉल्व करो, दिस इज 3x इक्वल टू 2L, तो L इक्वल टू 3/2, आपको x फाइंड करना है, x इक्वल टू 2L/3, 2L/3 मेजर्ड फ्रॉम विच चार्ज, 4Q, देखो 2L/3 फ्रॉम 4Q है ना, लेकिन चार्ज आपके पास कितना है वो भी पूछ रहा है। They're also asking you what is the value of Q, positive or negative. तो 2L/3 from plus 4Q, 2L/3 from which x कहां से मेजर कर रहे हो आप, 4Q से, राइट। तो 2L/3 आना चाहिए 4Q से, फिर चार्ज तो जो भी आएगा वो आएगा, नेगेटिव आएगा तो भी ठीक, नहीं तो पॉजिटिव आएगा तो भी ठीक। तो 2L/3 डिस्टेंस फ्रॉम प्लस 4Q इज ओनली इन द ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब आपको चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, यू डोंट हैव टू कैलकुलेट बिकॉज डजंट मैटर, ओके। तो सिर्फ डिस्टेंस ही फाइंड कर लिया तो भी आपका हो गया। अगर ऐसा बोला होता एट ए डिस्टेंस 2L/3 फ्रॉम प्लस 4Q एंड चार्ज इज प्लस 4Q/9, तो फिर देखो ऐसा है कि ऑप्शन में 2L/3 फ्रॉम 4Q इज ओनली वन ऑप्शन, तो चार्ज पॉजिटिव की नेगेटिव उसके लिए सॉल्व नहीं करना है, अदरवाइज यू विल बी ओनली वेस्टिंग योर टाइम। इज इट क्लियर, पक्का। हमने क्या किया, लॉजिकली सोचो, अगर ये चार्ज पॉजिटिव होता या नेगेटिव होता, पॉजिटिव अगर है तो क्या होगा कि ए पे जो चार्ज है वो उसको रिपेल करेगा और बी पे जो चार्ज है वो भी उसको रिपेल करेगा, मतलब कैंसिलेशन इज पॉसिबल, पॉजिटिव है तो। अगर नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये फोर्स, ये प्लस 4Q ये इसको अट्रैक्ट करेगा और वो भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो भी कैंसिलेशन पॉसिबल है, राइट। मतलब ये होना कहाँ चाहिए, इन बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग चार्ज 4Q एंड चार्ज स्मॉल q। कहां पे रख दिया मैंने, x डिस्टेंस पे, कहां से, 4Q से, तो बिकॉज यू आर कीपिंग इट एट अ डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम 4Q, और फिर आप सॉल्व करते हो एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ x एज 2L/3, मतलब द चार्ज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2L/3 फ्रॉम प्लस 4Q, डन। Next question. A charge capital Q is placed
at each of the opposite corners of a square. A charge small q is placed at each of the other corners, other two corners. If the net electrical force on q is 0, then q by q is. तो आपके पास एक स्क्वायर है, यू हैव अ स्क्वायर जिसके दो साइड्स पे आपके पास एक चार्ज है प्लस कैपिटल क्यू, एंड दिस इज द सिचुएशन. So you have at two opposite corners capital Q and capital Q, small q and small q. Okay, the net electrical force on Q is 0. इसमें से at one of the capital Q the force is 0. मतलब let us give it some name. बोल देते हैं A, B, C and D. Okay, so force on B due to A is this, and again you have force on B due to C. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस पे फोर्स निकालो और दिस डिस्टेंस इफ इट इज लेट अस से A, this is A, so force on B due to A equal to force on B due to C. These are equal in magnitude, that is 1/4π0. इसको मैं K बोल रहा हूँ. Q1 Q2 मतलब small q capital Q by distance square. Okay, then what you have is इन दोनों का रिजल्टेंट पहले फाइंड कर लो, एंड इफ यू रिमेंबर इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है लेट अस से FR, इट इज अलोंग द डायगोनल. तो अगर आपको याद होगा तो FR इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस नथिंग. क्यों नथिंग? cos 90. वेरी गुड. तो इन शॉर्ट ये आपके पास आएगा अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ F. तो FR इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर एज इट इज मैं रखता हूं फिलहाल. देन इफ यू रिमेंबर कि जो फोर्स ऑन D, force on B due to D है, it is also in the same direction. Force on B due to D, okay, this is also in the same direction. So what you will have is force on B due to D is 1/4π0 मतलब K, Q1 Q2 Q square and Q square मतलब Q into Q is Q square. Q1 Q2 सेम है दोनों के चार्जेस. डिस्टेंस ये A तो ये रूट टू ए का स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर. Okay, then okay, so this is what you will get. Now total force, what will be total force दोनों का addition? So total force on B is resultant force plus force on B due to D, and that is resultant force was root 2 times of F, but F was K small q capital Q by A square plus force on B due to D is K Q square upon 2A square. ओके, तो ये आपका आ जाएगा K, जो भी कॉमन निकलता है निकाल लो. Q निकल गया कॉमन, बाय A स्क्वायर आ गया कॉमन. तो क्या बचा? रूट 2 K स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाय 2, और रिजल्टेंट फोर्स आपको बोला है 0, बोला है 0, राइट? तो बट गिवन इज FB equal to 0, right? And therefore you will have 0 equal to KQ by A square root 2Q plus Q by 2. Okay, so you have to solve this. इसको shift करके 0 करो, and therefore you will have 0 equal to root 2, ये Q था, root 2Q plus Q by 2. So therefore capital Q by 2 equal to minus root 2Q. Therefore capital Q by small q is equal to minus 2 root 2. So you have minus 2 root 2, option number A. Done. All right. So there is a small correction in question number 16. हमने ऐसा सॉल्व किया था पहले for one negative.
if I remember, 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb and 2 microcoulomb, right? यहाँ 1 था, यहाँ -1 था और यहाँ पे 2 था. But in this case you have Q, Q and Q. So because now both forces are repulsive, पिछले केस में एक अट्रैक्टिव था तो एक फोर्स यहाँ पे था, इसलिए एंगल लिया था हमने 120. But now in this case what is happening is both are repulsive forces, so ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60. तो only change here will be a very small change. √3 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी. तो ये आएगा आपका cos of 60. So you have cos of 60 और cos 60 is half, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ पे √3 आएगा और √3 of f. So this will be only correction here, that you will be getting √3 times of f, and f is nothing but k q square by a square. So √3 k q square by a square. So this will basically, option number D is the correct answer. Option number D. Okay, done. Next question. ये हो गया, ये खत्म. This one. Two identical balls having like charges and placed at a certain distance apart repel each other with a force, certain force F. They are brought in contact and then moved apart at a distance equal to half of their original separation. The force of repulsion between them increases 4.5 times in comparison with the initial value. The ratio of the initial charges of the ball is. तो ऐसा है, initially let us say Q1 था और Q2 था, distance था let us say R, force था let us say F. Okay, two identical balls having like charges. Like मतलब equal नहीं, like मतलब positive positive, negative negative. Okay, and they repel each other with a certain force F. They are brought in contact. What will be the new forces? एक पे Q1, एक पे Q2. When you brought them in contact, total is Q1 plus Q2. When you separate again, it is Q1 plus Q2 by 2. So it is Q1 plus Q2 by 2, and Q2 dash is again Q1 plus Q2 by 2, right? And then they are separated to half of the original distance, मतलब R1 by 2, half of the initial distance. So, and the force F2 becomes 4.5 times of the initial force, मतलब 4.5 F1. So what is the ratio of initial charges? Q1 by Q2 का ratio पूछा है आपको. तो कैसे solve करोगे? Easy question है. Force is proportional to product of charges by R square. तो आप बोलोगे यहाँ पे F2 by F1 is equal to F2 by F1. तो यहाँ पे आएगा आपका Q1 dash Q2 dash upon R2 square upon F1 is Q1 Q2 upon R1 square. करेक्ट? यहां तक क्लियर? कांस्टेंट मैंने कैंसिल कर दिया. Force is proportional to Q1 Q2 by R square. तो F2 force in the second case Q1 dash Q2 dash upon R2 square, and the first case is Q1 Q2 by R1 square. Constant K जो था 1/450, it is cancelled out. So now here you will have this as equal to F2 by F1 equal to Q1 dash Q2 dash upon Q1 into Q2, or this is R1 by R2 का square. Q1 dash Q2 dash or F2 by F. What is F2 by F1? 4.5. This is Q1 plus Q2 by 2, और वो भी उतना ही, मतलब square. Okay, Q1 into Q2, Q1 into Q2 वो वैसा ही रहेगा, उसको कुछ नहीं करना फिलहाल, देखते हैं बाद में. R1 by R2, R1 by R2 is 1 by 2 नहीं 2. R2 is R1 by 2, तो R1 by R2 is 2. 2 square is 4. तो ये 2 का square आएगा. So you will have 4.5. And by the way, this and this will cancel out anyways. So Q1 plus
Q2 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Q1 Q2, उसका स्क्वायर है ये, 2 का स्क्वायर होगा मतलब ये आएगा 4 और ये आएगा 4, 4 ये और ये कैंसल, तो 4.5 Q1 Q2 इक्वल टू Q1 प्लस Q2 स्क्वायर, राइट, गुड। अब रेशो पूछा है किसका, Q1 बाय Q2। नाउ सम बुक्स विल टेल यू इसको a प्लस बी स्क्वायर करो फिर सॉल्व करो, राइट, but wait a minute, we can also find some shortcut method because I am too lazy to solve this। मैं ऐसा नहीं करने वाला, क्या चाहिए, रेशियो ऑफ Q1 बाय Q2। तो what if मैं ऐसा तो कर ही सकता हूँ, let us try it out, okay। तो मैं काम करता हूँ, Q1 कॉमन निकाल लेता हूँ तो Q2 कॉमन निकाल लेता हूँ, let us take out Q2 as कॉमन। तो Q2 का कॉमन निकालना मतलब स्क्वायर करके कॉमन निकालना पड़ेगा इस ब्रैकेट में से, करेक्ट, गुड। देन अंदर क्या बचेगा, Q1 बाय Q2 प्लस 1 का स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दिया तो 4.5 टाइम्स ऑफ Q1 मतलब एक और एक ये कैंसिल हो गया, तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू Q1 बाय Q2 प्लस 1 का ब्रैकेट स्क्वायर, बराबर, राइट। अब ये जो चार ऑप्शंस है पहली वैल्यू डाल के देखते हैं 2, Q1 बाय Q2 की वैल्यू डालेंगे 2, 4.5 इंटू 2 इज 9, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आया 9, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, हो गया मैच। अगला करके देखते हैं 3, 4.5 इंटू 3 13.5, 3 प्लस 1 4 उसका स्क्वायर 16, होता है क्या इक्वल, नहीं। देन 4, 4.5 इंटू 4 इज 18, पर यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 5 स्क्वायर इज 25, होता है क्या, नहीं। 6, 4.5 इंटू 6, 18 प्लस 9 27, 27 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे 6 प्लस 1 7, 7 का स्क्वायर 49, तो एक ही वैल्यू के लिए योर आंसर्स आर, योर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर सेम ओनली फॉर वन, तो कौन सा आंसर आएगा, ए। तो आई डोंट वांट यू टू, क्योंकि बुक्स में दिया है इसको स्क्वायर करेंगे फिर सॉल्व करेंगे, व्हाई डू यू वांट टू डू दिस, यूज दिस, ओके, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, under the action of a given coulombic force the acceleration of an electron is, तो आपको एक्सेलेरेशन दिया हुआ है 2.5 into 10 power 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 22 I don't know, ठीक है। then the magnitude of the acceleration of the proton under the action of same force is equal to, देखो the thing is you know force is equal to mass into acceleration, under the same force मतलब acceleration is force by mass, but under the same force बोलना मतलब force is constant, तो force constant है तो A is proportional to 1 by m, why, since F is a constant। आपको पूछा है what is acceleration of proton, तो acceleration of proton upon electron is mass of electron upon mass of proton, okay। so acceleration of proton will be mass of electron which is 9.1 into 10 power minus 31 and mass of proton is 1.67 into 10 power minus 27, acceleration of electron वहां पे जाएगा और उसकी वैल्यू आपको दी है 2.5 into 10 power 22, तो जिनको ये स्टेप में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है कहां से आया तो उनके लिए मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, आई हैव डन नथिंग बट सिर्फ यहाँ से ए ई को वहां पे शिफ्ट किया है and then I have substituted values of ME, MP and AE, right, and then solve। अब देखो by the way ये 10 पावर माइनस 27 ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, माइनस 31 एंड 22 इज माइनस 9 और ये ऊपर जाके प्लस 27 माइनस 9 माइनस 9 प्लस 27 माइनस 9 प्लस 27 18, ओके, तो 10 पावर 18, तो 10 पावर 18 और ये 9.1 by 1.6, 1.62 is 3.2, 4 is 6.4, 5 is 19,
8। ओके, तो ये आपको पता अगर है रफली तो यू कैन सॉल्व, नहीं पता तो पूरा करो। तो पूरा करने के लिए यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट बाय द वे लेट अस चेक। तो देखो द थिंग इज यहाँ पे 1.6, 1.5, 9.1 एंड 1.6। अब 10 का पावर देखोगे ना, -19, 31, 27 एंड 19। तो एक ही आंसर है जो हमारे 10 के पावर से मैच हो रहा है। कौन सा? सी। डन, खत्म। फिर भी फॉर योर सेटिस्फैक्शन वी विल डू दैट आल्सो, कोई बात नहीं। 2.5 मान लो 25, 25 9 जा 225, तो 2.5 into 9 will be 22.5, 22.5 upon 1.6, 15 रफली। ऊपर क्या आया? 2.5 into 9 कितना आया? 22.5 अपॉन नीचे क्या है? 1.6। रफली ये 15 का है। Yes, what is 1.6 into 10? 16. What is 1.6 into 5? कैलकुलेशन के मामले में यू हैव टू इंप्रूव अलॉट मतलब अलॉट। 1.6 into 15 is 1.6 into 10 plus 1.6 into 5, करेक्ट? पक्का? 16 plus 8, 0.8 नहीं, कितना? 8, तो ये कितना आएगा? 22। तो यहाँ भी तो 22 by 1.16 था, तो ये कितना आएगा? 15। तो दिस इज 15 into 10 power 18, मतलब 1.5 into 10 power 19, मतलब ऑप्शन नंबर सी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The electrostatic force on a small sphere of charge 0.2 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.4 microcoulomb in air is 0.4. The distance between the two spheres is, simple question है। आपके पास चार्ज Q1 दिया है, चार्ज Q2 दिया है, आपको फोर्स बताया है। तो फोर्स इज K Q1 Q2 by R square, तो R square is K Q1 Q2 by F, this is 9 into 10 power 9, Q1 0.2 microcoulomb मतलब 2 into 10 power minus 7, 0.2 into 10 power minus 6, 2 into 10 power minus 7, और ये माइनस 0.4 है। ओके, माइनस, तो माइनस 0.4 को मैं माइनस नहीं लिखूंगा, मैं प्लस लिखूंगा, क्योंकि अदरवाइज आर स्क्वायर है। आप रूट लोगे तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, या तो फिर फोर्स में भी नेगेटिव साइन डालना पड़ेगा, दोनों में से, राइट? सो एनीवेज 0.4 मतलब 4 into 10 power minus 7 अपॉन व्हाट इज द फोर्स? 0.4 मतलब 4 into 10 power minus 1, कैंसल एंड कैंसल, तो यू हैव यहाँ पे 9 to the 18, राइट? तो 1.8 दिखना चाहिए, मतलब A and B cannot be your answers. Now 18 into 7 7 14 with negative sign 10 का पावर, और ये +9 -5, और ये नीचे से ऊपर आएगा -4 हो जाएगा, नहीं वेट, 10 पावर 9 -14 10 पावर -5 ऊपर आके प्लस होगा 10 पावर -4, तो 10 पावर -4, इसमें से एक पावर मैंने इसको दे दिया, तो 1.8 into 10 पावर -3, करेक्ट? इनकरेक्ट। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। वेरी गुड, तो मैंने पहले ही बता दिया था, ध्यान दो, इसलिए मैंने बोला हाँ ऊपर ए और बी में से नहीं आएगा, सबने बोला यस, मैंने भी बोला यस, तो दैट इज नॉट करेक्ट। व्हाट इज करेक्ट इज आर स्क्वायर का जब रूट लो, अब सॉल्व नहीं करना है आपको, क्योंकि 18 का स्क्वायर रूट 4.2 ही आएगा, ऑप्शन बता रहा है आपको। Option is telling you that if you take square root of 18, you will get 4.2 and 10 power
-2, करेक्ट, राइट। तो ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या प्रॉब्लम हो गया? डू यू सी समवेयर व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? प्रॉब्लम कहाँ हुआ? ओके, ये 9 × 10⁻9, ओके फाइन। दिस इज 2 × 10⁻7, ये 0.2 माइक्रो था, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। नीचे का 0.4 था, तो ये भी सही है, 4 4 कैंसिल हुआ। 10⁻14 प्लस 9 वॉज -5, ऊपर जाके ये +1 हुआ, तो 10⁻4, 18 × 10⁻4, उसका रूट 4.2 × 10⁻2 आना चाहिए, ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। सो माइनस, why -2, where -2? हाँ, तो 0.4 is 4 × 10⁻1, 0.4 is 4 × 10⁻1, देन क्या गलत हो सकता है? इट इज रॉन्ग, नथिंग, नथिंग, तो फिर ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि नथिंग इज रॉन्ग। 0.2 माइक्रो, ओके, 0.2 माइक्रो करेक्ट है, 0.4 माइक्रो करेक्ट है, दैट इज ऑल राइट। इन एयर है तो के की वैल्यू बराबर है, राइट। फोर्स इज, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, नो इश्यूज, राइट। देन आपको जब सॉल्व करोगे तो एवरीथिंग इज राइट, नथिंग इज रॉन्ग, तो ठीक है। ये अगर 4 न्यूटन का फोर्स होता, 4 न्यूटन होता, तो यहाँ पे आप ये लिखते नहीं। अब आपके ऊपर होता है 10⁻⁻5 -5 में से एक इसको दे देते, या फिर आपको चाहिए तो 180 कर लेते, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट। बट वो आएगा ही नहीं आंसर, क्योंकि जब आप 1.8 का स्क्वायर रूट निकालोगे, व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1.8? 1 पॉइंट समथिंग, है ना, 1 पॉइंट समथिंग ही आता है वो। तो इसका मतलब you will not get right answers. So I suggest you to make a correction over here. That is the only way out. Okay, so that's it for today.